Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the Basic to Advanced LIDA practice series, and this is day 29, and we are currently on to data interpretation. Right. So before we begin this particular session, a very important announcement. Right, our next batch and the final batch of this particular academic year is going to be live very soon. The batch is actually starting from the 10th of June, and it is currently priced at 17,000, right? And we have a 15% discount to the first 100 learners. So if you want to prepare for CAT 25 with us, this is the batch, this is a final batch, so don't miss out on this particular opportunity, right? So let's start with today's session. And as always, first pause this video, try this set first yourself, and then proceed on with the rest of the solution. Right, so chalo start karte hain. So today we have a kind of a caselet with us, right? Paragraph mein information likha hai, we have to deduce it from the information given, and then we'll have to tackle the three problems that are actually given. Let's start reading all the information one by one. क्या क्या हमारे पास सिचुएशन दिया हुआ है, क्या करना है अपने को, देखते हैं. Rahul purchased three machines, machine A, machine B and machine C, which manufactures spoons. Okay, spoon manufacturing a business है. Every day, Rahul switches on all the machines at 8 a.m. and switches them off at 5 p.m. तो machines को कब switch on कर रहा है वो, सुबह के 8 बजे, and switches them off at 5 p.m. तो एक continuous duration हमारे पास mentioned है. ठीक है, इसको ध्यान रखना. However, each machine manufactures the spoon at different rates and in a different manner. तो ऐसा नहीं है कि तीनों मशीन हमारा एक ही यूनिफॉर्मिटी के साथ स्पून्स क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. देयर हैज टू बी सम पेक्युलैरिटी व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग बाय दिस मशीन ए. मशीन बी का अपना कुछ पेक्युलैरिटी होगा, मशीन सी का अपना कुछ टैंट्रम या फिर पेक्युलैरिटी होगा, उसी के अकॉर्डिंगली क्या है स्पून्स मैन्युफैक्चर हुए. अब 3 पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट में तीनों मशीन्स के बारे में एक्चुअली बता रखा है. लेट्स अंडरस्टैंड द पैटर्न. दिस इज बेसिकली अ प्रॉब्लम जहां पे आपको पैटर्न रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा. ऑल्सो विल हैव टू लुक एट द like situation, the questions also, to gather information about how to actually go about representing the data. ठीक है, अभी थोड़ी देर में देखो एक प्रॉब्लम राइज होगी कि रिप्रेजेंट कैसे करना है, उस चीज को रिजॉल्व कौन करेगा, ये अपने सारे क्वेश्चंस ही करेंगे. फर्स्ट प्रॉब्लम, सॉरी, फर्स्ट स्टेटमेंट सेज मशीन ए मैन्युफैक्चर स्पून्स एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 19 स्पून्स एवरी आवर. तो मशीन ए का जो सिचुएशन है, इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हर घंटे, हर आर में वो क्या कर रहा है, एग्जैक्टली 19 स्पून्स मैन्युफैक्चर कर रहा है. तो पहले घंटे में भी, पहला घंटा बोले तो सुबह 8 बजे से मशीन स्टार्ट हो रहा है ना, तो 8 to 9 19 स्पून्स, 9 to 10 19 स्पून्स, 10 to 11 19 स्पून्स, एंड सो ऑन टिल द लास्ट 1 hour टाइम स्लॉट. इफ आई कैन थिंक अबाउट इट, 4 to 5 वाला टाइम स्लॉट लास्ट स्लॉट होगा, तो उसमें भी एग्जैक्टली 19 स्पून्स मैन्युफैक्चर होंगे. तो मशीन ए में अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है. But when it comes to this machine B manufactures 27 spoons in the first 90 minutes that it is switched on. In every subsequent 90-minute interval, it manufactures 3 spoons more than what it manufactured in the previous 90-minute interval. And this is the very important part. देखो इसी के बेस पे हम अपना कैलकुलेशन करेंगे. Within each 90-minute interval, the machine manufactures the spoon at a constant rate या फिर यूनिफॉर्म रेट. इस पॉइंट को पहले समझ लो. इस पॉइंट को लिखने का एक्चुअली में मतलब ये होना चाहिए कि अगर हम ये कह रहे हैं कि लेट्स से मशीन बी ने अपने पहले 90 मिनट के टाइम स्लॉट में 27 स्पून्स मैन्युफैक्चर करे हैं, एंड व्हेन दिस सेज within each 90 minute interval the machine manufactures spoons at a uniform rate, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं ना कि 27 स्पून्स है 90 मिनट में, तो पर मिनट कितने स्पून्स मैन्युफैक्चर हुए होंगे, तो वी कैन डू 27 डिवाइडेड बाई 90, क्योंकि 90 मिनट में 27 स्पून्स है, तो एक मिनट में 27 बाई 90 स्पून्स. ये जो बेसिक चीज हम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ इसीलिए पॉसिबल है बिकॉज ये लाइन लिखी हुई है द स्पून्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट अ कांस्टेंट रेट. ऐसा नहीं है कि उस 90 मिनट में पहले 10 मिनट में ज्यादा मैन्युफैक्चर हुआ, फिर 10 मिनट में कम हुआ, फिर ज्यादा हुआ, फिर कम हुआ. इस तरीके से नहीं है, यूनिफॉर्मिटी के साथ आपका है. तो इसीलिए अगर मेरे को ये सिचुएशन पड़ी ना, फॉर एग्जांपल 90 मिनट्स में 27 स्पून्स है, एक मिनट में कितने स्पून्स मैन्युफैक्चर होंगे, तो हम 27 डिवाइडेड बाई 90 कर सकते हैं. हाँ, ऑल्दो इट इज नॉट रियली गोइंग टू मेक सेंस
राइट, न्यूमेरिकली कि वो फ्रैक्शंस में कैसे आ सकता है नंबर ऑफ स्पून्स। तो हम ये भी तो कह रहे होंगे कि बिकॉज 27/90 हो रहा है, तो इससे हम ये भी बोल रहे होंगे कि ऐसा नहीं हो रहा होगा कि फिर 1 मिनट में एक स्पून मैन्युफैक्चर हो जा रहा होगा। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। इट इज सिमिलर टू सेइंग कि बहुत बार जो ग्रोसरी वेंडर्स होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं कि 3 रुपए में हम 5 दे देंगे, 3 रुपए में 5 दे देंगे, या फिर सपोज 3 रुपए में हम 4 दे देंगे, 3 रुपए में 4 दे देंगे, तो 1 रुपए में कितना मिला, 4/3 मिला ना, 1 रुपए में 4/3 मिला है। तो अगर तुम 1 रुपए का सिक्का दोगे तो ऐसा नहीं है ना फिर वो दे पाएगा, वो बेचने का रेट है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कोरिलेशन बिटवीन दैट। अभी अब वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाएगा। बाकी मशीन सी के लिए हमारे पास एक और पैटर्न है, मशीन सी को सेपरेटली डील करते हैं। अब हम चलते हैं जरा, थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया है, मशीन सी का भी अपना कुछ आइडिया है, उसको भी हम डिकोड कर लेंगे। बट लेट्स फर्स्ट थिंक अबाउट हाउ टू स्ट्रक्चर दिस, कैसे स्ट्रक्चर करें। एक बेसिक आइडिया मेरे को यहां पे मिला था, क्योंकि मशीन ए का सबसे इजी था कि एवरी 60 मिनट इंटरवल, एवरी आवर इट मैन्युफैक्चर्स क्या है, 19 स्पून्स। तो हम क्या करते हैं, जो पूरा अपना ड्यूरेशन है ना 8 AM से 5 PM, इसको 1 1 आवर के ड्यूरेशन में तोड़ देते हैं। नाउ दिस वुड ऑल्सो मेक सेंस विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉब्लम्स, बिकॉज अगर नोटिस करो, जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्पून्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द 3 मशीन्स अंटिल 1 PM। तो 1 1 के स्लॉट में अगर हम तोड़ लेंगे, और सुबह 8 बजे से चालू हो रहा है, तो 8 to 9 प्लस 9 to 10 प्लस 10 to 11 प्लस 11 to 12 और 12 to 1, ये कर सकते हैं अपन, ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्पून्स मैन्युफैक्चर आ जाएगा। सेकंड प्रॉब्लम में और ज्यादा हिंट मिलता है कि हाँ 1 1 के स्लॉट में ब्रेक करना हमारे लिए सबसे बेस्ट सिनेरियो क्रिएट करेगा, बिकॉज सेकंड क्वेश्चन से इज कंसिडरिंग 1 hour इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम 8 AM ड्यूरिंग हाउ मेनी आवर्स बिटवीन 8 AM एंड 5 AM विल सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई, राइट। तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट है कि हम क्या करते हैं, अपना जो भी पूरा ड्यूरेशन है ना, उसको 1 1 आवर के टाइम ड्यूरेशन में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं जरा, आप इसको कैलकुलेट करना। सो आई डू फॉर ऑल द 3 मशीन्स। पहले टाइम स्लॉट तोड़ा जाए, सो 8 से स्टार्ट हुआ है, पहला टाइम स्लॉट 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1, PM वगैरह नहीं लिख रहे हैं, वो क्लैरिटी तो है ही ना। तो 12 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड फाइनली 4 to 5, ये हमारा लास्ट स्लॉट है। और यही सेम चीज हम किसके लिए फिगर आउट करेंगे, ए के लिए भी करेंगे, बी के लिए भी करेंगे और सी के लिए भी करेंगे। टू बिगिन विथ, ये जो ए है वो तो सबसे इजी था, क्योंकि हर 1 hour के टाइम स्लॉट में अपने को पता था मशीनें मैन्युफैक्चर स्पून एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 19 स्पून्स एवरी आवर। सो हर घंटे एग्जैक्टली ए कितना मैन्युफैक्चर करेगा, 19 ही मैन्युफैक्चर करेगा। सो 19 19 19 थ्रू आउट टिल 4 to 5 ऑल्सो, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब मेन, अब अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है। टीआई का जो मेन स्किल है वो अपना बी के लिए इन्वॉल्व होने वाला है, एंड देन उसके बाद सी के लिए। बी में अब मेरे को 1 hour टाइम स्लॉट में एक्चुअली में निकालना है, ठीक है। हमारा जो बी का रेट वेट दिया हुआ है वो किसके लिए दिया हुआ है, 90 मिनट के लिए दिया है, हमें 60 मिनट के लिए एक्चुअली में नंबर चाहिए होंगे। अब देखो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूं, लेट्स से अगर कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल बेस्ट तरीके से करना है, तो ऐसे सोच लेना। देखो बी में हर 90 मिनट में, हर 90 मिनट में कितना हो रहा है, पहले 90 मिनट में कितना हो रहा है, 27, ठीक है। पहले 90 मिनट में कितना हुआ है, 27। उसके बाद उसने बोला था ना, इन एवरी सब्सिक्वेंट 90 मिनट इंटरवल इट मैन्युफैक्चर्स 3 स्पून्स मोर देन व्हाट इट मैन्युफैक्चर्ड इन द प्रीवियस 90 मिनट इंटरवल। सो पहले 90 मिनट में अगर 27 है, तो अगले 90 मिनट में 30 होगा, अगले 90 मिनट में 33 होगा, अगले 90 में 36 होगा, फिर 39 होगा, फिर 42 होगा, फिर 45 होगा, एंड सो ऑन। मेरे को नहीं पता कि कहां तक है, मेरे को बस मतलब यहां तक है, बट ऐसे ही चलेगा हर 90 के इंटरवल का। अब एक काम कर लेते हैं, देखो सिंपल सा समझना, मेरे को पता है 90 में इतना इतना है, मेरे को 60 बनाना है। तो इमेजिन करना कि मैं 90 मिनट ड्यूरेशन को ना 30 मिनट, 30 मिनट और 30 मिनट में अगर तोड़ू, और हमेशा 2:30 में कितना मैन्युफैक्चर हुआ है वो कंबाइन करता चलूं, तो 1 1 आवर का मेरे को नंबर एक्चुअली में मिलता चलेगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे लिखें, लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर। देखो पहले आप अपने सामने नंबर्स लिख लो कि हर 30 मिनट में होता कितना है। तो 27 जो हमारे स्पून्स मैन्युफैक्चर हुए हैं 90 मिनट में, हर
30 में कितने कितने हुए होंगे, 999। पहले जो तीन 30 मिनट के इंटरवल रहे होंगे उसमें कितने हुए होंगे, 999। उसके बाद अगले 90 मिनट में कितना हुआ, 30 स्पून। तो उसमें अगर मैं 30 के स्लॉट्स ब्रेक करूं तो कितना कितना हुआ होगा, 10 10 10। सिमिलरली 11 11 11, 12 12 12, 13 13 13, 14 14 14 एंड 15 15 15 एंड सो ऑन अगर आएगा तो। अब ये जो मैंने एक्चुअली में नंबर्स लिखे हैं, राइट, ये कौन से नंबर है, 30 मिनट के इंटरवल में नंबर ऑफ स्पून्स मैन्युफैक्चर्ड है। मुझे क्या चाहिए, 60 मिनट्स के इंटरवल में चाहिए। तो बस कुछ नहीं करना है, दो नंबर को क्या करते रहेंगे, कंबाइन, क्योंकि 30 + 30 मिनट 60 मिनट बन जाएगा ना। तो पहले 60 मिनट में 9 + 9, अगले 60 मिनट्स में 9 + 10, फिर अगले 60 मिनट्स में 10 + 10, अगले 60 मिनट में 11 + 11, फिर 11 + 12 प्लस 12 + 12, 13 13 13 14 14 14 15 15 एंड सो ऑन जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे जरूरत पड़ेगी तो हम लिख लेंगे। अब एक्चुअली में ए हमारा ये था, राइट, बी एंड सी ये रब हो गया था। सो ए में हमारे पास ये सारे नंबर है। तो उसी तरीके से जो हमारा मशीन बी है उसमें हमारा 8 to 9 के स्लॉट में कितना होगा, पहले दो नंबर का एडिशन 9 + 9 18 स्पून, नेक्स्ट 9 + 10 19 स्पून है ना, 18 फिर 19 फिर ये कितना 20 22 23, सो 20 22 23, देन 24 26 27 24 26 27 एंड देन एक और नंबर आ पाएगा, दैट इज 14 + 14, दैट इज 28। इसकी जरूरत नहीं है अपने को, ये कितना आ जाएगा 28। तो लास्ट जो हमारा टाइम स्लॉट है 4 to 5 का, उसमें एक्चुअली में मशीन भी कितने स्पून्स मैन्युफैक्चर कर रही होगी, 28। सो बस ये अपना एक सिंपल बेसिक आइडिया इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू मशीन सी। नाउ मशीन सी के केस में हमारा एक नया पैटर्न है, सो विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट पैटर्न अगेन। मशीन सी में क्या है, इन द फर्स्ट आवर दैट इट इज स्विच्ड ऑन, manufactures spoons for 57 minutes in the first hour and cools down for the remaining 3 minutes. So 60 मिनट में 57 मिनट्स ही एक्चुअली मैन्युफैक्चर हुआ है, 3 मिनट कूलिंग डाउन हमारा टाइम है। In every subsequent hour, the time it takes to cool down increases by 6 minutes as compared to that in the previous hour. तो वर्किंग आवर भी हमारा 6 से और कम होता जाएगा। तो जैसे फर्स्ट आवर में 57 मिनट हुआ, अगले में 51 हो जाएगा, फिर 6 और कम 45, फिर 39 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा वर्किंग वाला हमारा टाइम। अब ये तो वर्किंग टाइम है, नंबर ऑफ स्पून्स मैन्युफैक्चर्ड कहां है, वो एक्चुअली में आ गए। When the machine is not cooling down, it takes exactly 90 seconds, that is 1.5 minutes या 3/2 minutes, जो भी आप बोलना चाहो। It takes exactly 3/2 minutes 90 seconds to manufacture one spoon। तो देखो सिंपल सा चीज है, पहले घंटे में 57 मिनट्स उसने काम करा मशीन ने, बाकी 3 मिनट तो उसने रेस्ट लिया। तो उस 57 मिनट में कितने स्पून मैन्युफैक्चर हुए होंगे, ये सिंपली कैसे कर सकते हो, 1.5 मिनट्स या 3/2 मिनट्स में एक स्पून मैन्युफैक्चर होता है। तो ये जो टोटल वर्किंग आपका टाइम है 57 मिनट्स, इसको अगर मैं सिंपली क्या कर दूं, 1.5 से डिवाइड कर दूं या 3/2 से डिवाइड कर दूं, तो ये मेरे को फर्स्ट आवर में जिसमें 57 मिनट्स एक्चुअली मशीन सी ने काम करा, उसमें नंबर ऑफ स्पून्स मैन्युफैक्चर्ड का वैल्यू आ जाएगा, राइट, एंड दैट इज द कोर आइडिया। तो बस ये क्या करना है अपने को, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 3 से 19 आएगा, 19 का डबल कितना हो जाएगा हमारा 38। सो दिस इज 38। सिमिलरली अगले में भी, अगले जो 1 आवर है उसमें 51 मिनट मशीन ने काम करा, और पर मिनट कितना, सॉरी पर स्पून कितना टाइम लगता है, 3/2 मिनट्स। तो अगेन इसको हम 3/2 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ स्पून आ जाएगा 17 इंटू 2 34। तो इसमें एक्चुअली में पैटर्न अगर नोटिस करोगे तो 4444 से डिक्रीज होता जाएगा। जैसे इसमें भी तो यही आएगा, 45 को 3/2 से डिवाइड करोगे 15 ऊपर और 2 भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई, सो 15 इंटू 2 30। सो बेसिकली अब ये क्या हो रहा है, 4 से डिक्रीज हो रहा है। सो वी डोंट नीड टू कैलकुलेट फर्दर, बस इसको क्या करते रहते हैं, 4 से डिक्रीज करते चलते हैं। 22 18 14
10, and finally 6. Right? So these are my respective numbers for machine C. Right? 4 4 से डिक्रीज हुआ है, perfectly fine. राइट, सो ये है रिस्पेक्टिव आर में रिस्पेक्टिव मशीन्स के अकॉर्डिंगली मैन्युफैक्चर्ड नंबर ऑफ स्पून्स. नाउ लेट्स स्टार्ट टेकिंग अ लुक एट द questions one by one. First, what is the total number of spoons manufactured by the three machines until 1? यहां तक टोटल नंबर ऑफ स्पून्स मैन्युफैक्चर्ड निकालना है. ये सामने अपने नंबर्स हैं ही, इसको उठा के क्या करना है, अपने को सिंपली ऐड करना है. जैसे मशीन ए का कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, सो 19 इंटू 5, 95 प्लस मशीन बी का कितना हो जाएगा. एक काम कर लेते हैं, 18 सबको मान लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5, तो 18 इंटू 5 इज 90 पहले ले लो, और जितना एक्स्ट्रा है उतना अलग से ऐड कर दो. 18 के बियॉन्ड कितना एक्स्ट्रा है, तो 1. ठीक है, इसमें 1 एक्स्ट्रा है 18 के रिस्पेक्ट में, इसमें 2 एक्स्ट्रा है, इसमें 4 एक्स्ट्रा है, और इसमें हमारा एक और, दैट इज 5 एक्स्ट्रा है. तो टोटल हमारा एडिशन कितना बढ़ जाएगा, 9 10 12. 12 हमारा और इंक्रीज हो जाएगा. देन मशीन सी तो ये बेसिकली एक एपी ही तो फॉर्म हो रही है ना, 4 4 4 4 के डिफरेंस पे. इनका मेरे को सम चाहिए, तो मिडिल नंबर उठा लो क्योंकि 5 टर्म्स है, तो मिडिल नंबर इज 30, और नंबर ऑफ बेसिकली एवरेज इन 5 नंबर का 30 हो गया, और टोटल हमारे पास 5 टर्म्स है, तो 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 100. ठीक है, बस यही अपना कैलकुलेशन है, कितना हो जाएगा ये, तो 5 प्लस 2 7 बाद में ऐड कर देंगे, सो 90 90 180. ठीक है, 180, इसको 12 प्लस 5 की बात 17 ऐड कर देंगे, सो 180 प्लस 150, दैट इज 330. 330 और 17, 330 और 17, 347. राइट, so that is the number of spoons manufactured in the time frame 8 to 1 p.m. ठीक है. Now, moving on to the second one. Considering 1 hour interval starting from 8 a.m. during how many hours between 8 to 5 will at least 2 machines manufacture the same number of spoons? तो at least 2 का उस 1 hour interval में सेम होना चाहिए. और जरा देखें कितने ऐसे 1 hour intervals में जिसमें एटलीस्ट 2 का सेम है. यहाँ पे किसी का भी सेम नहीं है, यहाँ पे इन दोनों का सेम है, एक बार ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ. यहाँ सब डिफरेंट, यहाँ सब डिफरेंट, यहाँ पे सब डिफरेंट, यहाँ पे भी सब डिफरेंट, यहाँ पे भी सब डिफरेंट, यहाँ पे भी सब डिफरेंट, और यहाँ पे भी सब डिफरेंट. तो ऐसा सिर्फ हमारा एग्जैक्टली एक ही बार हुआ है इन दिस 9 to 10 स्लॉट. तो इसमें पूछा था ड्यूरिंग हाउ मेनी आवर्स बिटवीन 8 to 5 विल एटलीस्ट 2 मशीन्स, तो एग्जैक्टली एक बार हमारा हुआ है ना. ओके, this is perfectly fine. Third, for which of the following periods is the maximum difference in the number of spoons manufactured by any two machines the least? अब थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसमें चेक करना पड़ेगा अपने को क्या करना है. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज द मैक्सिमम डिफरेंस लीस्ट, तो अपने को पहले सब में निकालना पड़ेगा मैक्सिमम डिफरेंस, पहले चारों में निकाल के फिर ये देखना पड़ेगा कि वो जो मैक्सिमम डिफरेंस आ रहा है बाय एनी टू मशीन्स वो लीस्ट किस ऑप्शन में एक्चुअली में आ रहा है. तो जरा करें 10 to 11. राइट, अब 10 to 11 1 आवर का स्लॉट है, शुड बी फाइन. तो 1 आवर के स्लॉट में 10 to 11 में ये तीनों का 19 20 और 30 है. यहाँ पे किसी भी दो मशीन का जो मैक्सिमम डिफरेंस है कब आएगा, मैक्सिमम और जो मिनिमम है उनका डिफरेंस निकाल के. सो 30 हाईएस्ट है, 19 लीस्ट है, तो यहाँ पे हमारा वो डिफरेंस कितना आ रहा है, 11. 11 to 1. अब 11 to 1 में ये दोनों मिला के देखेंगे, तो ये 38 हुआ, ये कितना हुआ 45 हुआ, और ये कितना हुआ हमारा 48 हुआ. सो 48 हाईएस्ट 38 लीस्ट, 38 एंड 48 का डिफरेंस यहां पे कितना आ जाएगा, वो 10. तो करंट हमारा लीस्ट तो यही आया. सी ऑप्शन देखते हैं, 1 2 3. ना 1 2 3 मतलब वही सेम 38 50 एंड 32. तो अब की बार हाईएस्ट एंड लीस्ट, ये कितना हो गया, 50 हाईएस्ट है, लीस्ट कितना है 32, सो 50 एंड 32 का डिफरेंस कितना हो गया 18. तो यहाँ तो डिफरेंस बड़ा ही हो गया. लास्ट 12 to 2, 12 to 2 ये वाला 38, यहाँ पे 47, और यहाँ पे 2 3 40. हाईएस्ट नंबर बीइंग 47, लीस्ट नंबर बीइंग 38, डिफरेंस बीइंग
9। ये है हमारा एक्चुअल में लीस्ट पॉसिबल नंबर, राइट? राइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर सेट। केसलेट है बेसिकली आपको बी एंड सी के थोड़े नंबर्स को इवेलुएट थोड़ा क्लियरली करना था, and that was the core idea behind this particular set. Right, so I hope you understood this. If you have any doubts, you can just put that in the comments. Thank you.